So, human development is the important chapter wherever we come into economic and social issues. So, in this chapter, we are going to deal with what is the meaning of human development, evolution of human development concept, how it come into picture, importance of human development, what are the essential components of human development, relationship between economic development and human development, concept of human capital, and under that sources of human capital formation. On the starting, so what is human development? If I quote that HDR report of 1997 as it is mentioned कि human development एक process है जिसमें हम people के choice को enlarge करते हैं, that we are trying to extend the people choices as well as raising the level of well-being achieved. Whatever well-being can have different forms, different persons have different kind of feeling for what they consider as the well-being. Some people consider wealth as achievement of that amount of income in their as a salary or whatsoever as their well-being achieved. Some people consider qualitative things as their well-being, like happiness, enjoyment, and all that thing, peace. So that is a subjective concept, but human development is all about enlarging the. So let me just quote this thing and let me highlight it about enlarging people choices as well as raising the level of well-being achieved. So human beings जो हैं उनका एक inherent what is something which is already in their inbuilt in themselves, like they are having some kind of potentials and capabilities which they are sometimes not aware of. तो कुछ cases में उनके जो potentials, like I already said कि the potentials and capacity remain unorganized, unnoticed and unutilized. There are some cases the people whoever is watching video, you should consider that many a times many things you came about yourself came to know about yourself a later stage of your life, that you are talented in this thing and you are good at it, but you just got to know about it a later after such a long period of time. So that there are still even after figuring out something for you, there are still some capabilities, there are still some potentials which you feel that is which is unutilized, unorganized and unnoticed. So ये जो process है development का, it is about creating a favorable atmosphere for the common people ताकि वो अपनी capacity को develop भी कर सकते हैं और expand भी कर सकते हैं. So human development क्या है? It is the process of improving the life and well-being of individual, focusing on their capabilities, opportunities and freedom to lead a fulfilling life. So what is a fulfilling life? That's again a subjective thing. People having different feelings like what they consider as a life which is fulfilling. So that is something cannot be defined because that is something subjective उसका concept है. पर human development is all about कि आप अपने well-being को, अपने life को किस तरह से improve कर सकते हैं, अपने capabilities, अपने potentials पे, अपने opportunities पे focus करके. Many a times you miss some worthy opportunities and later phase of your life you think and you regret on that. सो बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं बियॉन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, कंसिडरिंग सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि एक इंसान की लाइफ को इफेक्ट करते हैं. देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच अफेक्ट यू, योर लाइफ. So there are some dimensions. There cannot be some static life is going on because life is dynamic. It change with whatever is changing around you, around the atmosphere, around the environment. So we are done with the concept of human development. Now evolution of human development. This was developed by a Pakistani economist. The name should be remembered. It's very important. Mehboob ul Haq. I just repeat. It's very important to be noted कि who came with this concept. So ये जो human development का concept है, ये एक reaction है against the economic growth. Earlier we just focused on, before the concept came into picture, we were just concerned कि we have to increase the GDP of our country, we have to increase the per capita income, we have to remove the poverty and all that thing. But we're not concerned कि there is something a concept named as human development exists or can be a reaction against this approach of economic growth. UNDP द ऑर्गेनाइजेशन ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस करती है 1990 में, जो कि बताता है कि हाउ द ह्यूमन डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट vis-a-vis economic growth. That means along with economic growth there is something which is also important, that is human development.
सो ह्यूमन डेवलपमेंट अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच का एक कोर था, बेसिक बॉटम आइडिया, मेजर आइडिया, मेन आइडिया। अर्थ का core is the just innermost layer and that is the something which is very indispensable, very essential. So ये जो फोकस करता है कि कैसे इंडिविजुअल्स के कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज और फ्रीडम को, कि ताकि वो एक ऐसी लाइफ जी सके विच दे वैल्यू, rather just they are just solely emphasizing ki whatever material well-being or economic output they are getting. So they have to think not a life which is just fulfilling your well-being or just economic output. Materialistic things self fulfill, ऐसी life you should not be creating. You should be creating a life that you value. The freedom and capability should be used, focused. So central idea है कि people should consider what are their real opportunity, what they are able to do rather than just looking at their income or consumption. सिर्फ अपना क्या उनका इनकम आ रहा है, ये सब चीज़ों को सिर्फ देखने के अलावा there are something you have to think what are your opportunities coming in between. क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको capabilities हैं आपके, क्या potentials हैं, क्या freedom है आपको, जो उस पर आपको focus करना है. Now इम्पोर्टेंस क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का? सो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इट्स अ एंड, पर इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलरेडी अ मीन्स टू दिस एंड. यू नो व्हाट इज मीन्स एंड एंड? मीन्स और एंड को मैं समझाती हूँ कि इफ यू वांट टू गो दुबई एंड यू आर यूजिंग अ ट्रांसपोर्ट मोड, मे बी एयरलाइंस और मेक इट ऑल्सो, आप एयरलाइन का जो मोड यूज कर रहे हो, दैट इज योर मीन्स, दैट इज समथिंग विच इज हेल्पिंग यू, इज अ चैनल जिसके थ्रू आप वहां तक जा रहे हो. बट आपका गोल क्या है? यू हैव टू रीच देयर, यू हैव टू रीच दुबई, so that's your goal, right? तो ये होता है मीन्स एंड एंड. क्या चीज आपको वहां तक पहुंचा रही है, दैट इज योर मीन्स. I'm just giving this lecture. The medium is, I'm saying this with this channel and all of that, but you're getting it because my main goal is to teach you human development. It's just, but this whole setup is helping me for getting for reaching you with my lecture. So human development approach जो है ये क्या है? ये पीपल को कहता है, दैट इज द एंड ऑब्जेक्टिव. यू हैव टू डेवलप द पीपल. पीपल का डेवलपमेंट है हमारा ऑब्जेक्टिव, एज दिस कॉन्सेप्ट सेज इट. ग्रोथ करना जीएनपी में ये एक असेंशियल मीन्स है. अगर हम जीएनपी में ग्रोथ लाते हैं तो उससे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स अचीव होता है. ये ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी में एंड गोल क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट विल टेक प्लेस एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इट. सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज द एंड गोल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ चैनल जिसके थ्रू हम उसको अचीव करेंगे. लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट. सो ह्यूमन डेवलपमेंट का मीन्स क्या है? हायर प्रोडक्टिविटी लाना. एक नरिश्ड, वेल नरिश्ड, हेल्दी, स्किल्ड, एजुकेटेड, अलर्ट लेबर फोर्स. अगर वो एक इकोनॉमी के लिए क्या होता है? एसेट होता है. सो अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो दैट मीन्स यू आर गेटिंग हायर प्रोडक्टिविटी और अचीविंग हायर आउटपुट. फिर ये सब क्या है? दिस इज ऑल अबाउट कैसे वो इम्पोर्टेंट है, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट. सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. सेकेंड इज पॉपुलेशन कंट्रोल. अगर ह्यूमन डेवलपमेंट में आप इफ यू इन्वेस्ट इन दैट तो पॉपुलेशन भी रिड्यूस होगी इकोनॉमी की. जो ओवर पॉपुलेटेड इकोनॉमी हमारी है अभी, इंडिया इज समथिंग रिसेंटली जस्ट सरपास्ड चाइना टू बीइंग द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. सो हमारा जो आइडियल पॉपुलेशन साइज है वो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को help करेगा by leaps and bounds. So if you're investing, you're getting the population controlled. ठीक है. तो ह्यूमन अगर डेवलप्ड होंगे, they'll feel, if अगर they'll be get educated, अगर उनको समझ में आएगा कि एजुकेशन में लाइक क्या क्या चीजें हैं, स्किल, अलर्ट, ये सब चीजें अगर उनके अंदर आती है, then we'll understand कि हाँ कि what kind of population should be, it should be managed. Overcrowding, overpopulation, population explosion is not a good idea for any country or any economy. नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ये फिजिकल इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है. बैलेंस्ड पॉपुलेशन, इंक्रीज्ड अवेयरनेस. एजुकेशन के थ्रू हम उनको अवेयर करेंगे, बेटर हेल्थ देंगे, उनका फिजिकल इन्वायरमेंट सेव होगा, तो पीपल जब समझेंगे कि नेचुरल कैपिटल का क्या इंपॉर्टेंस है. सो ह्यूमन डेवलपमेंट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल. सो ये पॉवर्टी रिड्यूस करना ह्यूमन डेवलपमेंट के थ्रू ये एक हेल्दी सिविल सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है एंड ग्रेटर सोशल स्टेबिलिटी लाता है. सो इसके साथ साथ सिविल डिस्टर्बेंसेस को भी रिड्यूस करता है, जैसे कि वॉर हो गया, लाइक यू कैन सी रशिया, यूक्रेन, इजराइल, गाजा, पैलेस्टीन एंड ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग. लेबनान इज आल्सो इन्वॉल्व्ड. सो ये जो चीजें क्या ये कहीं के लिए भी अच्छी है? दैट्स नॉट गुड. Any war is not good for any country, for any economy. Even the whole world is getting
प्रॉब्लमेटिक सबके लिए होगा, भले ही 2 कंट्री या 3 कंट्री इन्वॉल्व है, बट इट्स जस्ट अ ग्लोबल क्राइसिस विच इज जस्ट गोइंग टू हैपन, इट्स जस्ट हैपनिंग ऑलरेडी. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस, या अंडरस्टूड है कि क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन डेवलपमेंट का. ओके, right now we'll be coming with the essential components of human development. क्या components बहुत जरूरी है, like equity, sustainability, productivity and empowerment. ये 4 ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट का. इक्विटी का मतलब है कि सब लोग जितने भी ह्यूमंस इकोनॉमी में हैं उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इक्वल एक्सेस मिलेगा चीजें की, जितने भी रिसोर्सेज है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. सस्टेनेबिलिटी का मतलब है जितने भी फॉर्म्स ऑफ कैपिटल है, फिजिकल है, फिनेंशियल है, ह्यूमन है या इन्वायरमेंटल है, वो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रखेंगे. दैट इज अबाउट, आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी फेमस, वेरी important term. Everyone should understand कि sustainability क्या होता है, ठीक है, कि not just thinking about your present needs but also about the future generations. प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दे कैन रीच देयर मैक्सिमम पोटेंशियल एंड कैन हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल. एंड एम्पावरमेंट, ह्यूमन शुड बी इन अ पोजिशन टू एक्सरसाइज देयर ओन विल, कि अपने मन से, अपने विल से, अपने फ्री चॉइस वो कर सकते हैं, फ्री विल से अपने चॉइसेस ले सकते हैं, उनको इस पोजीशन पे रखना. नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये साइक्लिकल नेचर रिलेशन है. अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक एरिया में इंप्रूवमेंट होगा, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट थिंग्स. इसके की फीचर्स है टू वे रिलेशनशिप, विच आई ऑलरेडी सेड कि ये दोनों ही चीजें जो है इंटरडिपेंडेंट है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है बाय रिसोर्सेज देकर, इंफ्रास्ट्रक्चर देकर, अपॉर्चुनिटीज देकर, ताकि पीपल का लाइफ इनहांस हो सके. उसी तरह ह्यूमन कैपेबिलिटीज में अगर इंप्रूवमेंट होगा, उनका हेल्थ, उनका एजुकेशन, उनका स्किल्स, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूशन होगा, हम एक प्रोडक्टिव और केपेबल वर्कफोर्स हम फॉस्टर कर पाएंगे, ठीक है. इन्हांसिंग ह्यूमन कैपेसिटीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इन ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट होगा, उनके हेल्थ पे, उनके स्किल्स पे, उनके एजुकेशन पे, तो ये सब इकोनॉमिक प्रोग्रेस में ही कंट्रीब्यूट करेगा, जो कि अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा. एक हेल्दी और एक एजुकेटेड वर्कफोर्स जो कि प्रोडक्टिव, इनोवेटिव और अडेप्टेबल है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा. ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन, जो ह्यूमन कैपिटल का एक्यूमुलेशन है, फिर विल बी इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये एक की फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. एक स्किल्ड, एक हेल्दी वर्कफोर्स बहुत जरूरी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, फिर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए. नाउ लास्ट हेडिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल. कैपिटल, अब हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ लिया, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या उसके कंपोनेंट्स है, क्या रिलेशनशिप है. पर ह्यूमन कैपिटल जो है, यू नो व्हाट इज कैपिटल व्हेन यू कम टू इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब होता है कि मैन मेड प्रोड्यूसर गुड्स का एक्यूमुलेटेड स्टॉक, और वी कैन से फिजिकल कैपिटल. मोर अप्रोप्रिएटली हम लोग उसको फिजिकल कैपिटल कहते हैं, बट इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल. तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब है एक ह्यूमन को एक इस तरह के रिसोर्स की तरह रखना, बनाना, उनको इनकलकेट करना कि वो अपना इकोनॉमिक आउटपुट को इंक्रीज कर सके. सो ह्यूमन कैपिटल क्या है, उनका नॉलेज, उनका स्किल, उनके टैलेंट, जो भी एक लेबर फोर्स में इम्बॉडीड है. व्हाट इज लेबर फोर्स, वो एक पॉपुलेशन का वो पार्ट है जो कि वर्क भी कर रहा है एंड वर्क करना भी चाह रहा है और वर्क कर भी रहा है, ठीक है. बोथ इज इम्पोर्टेंट, एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क. ह्यूमन कैपिटल को हम कैसे पोजेस करेंगे, हम एजुकेशन पे एक्सपेंड करके, ट्रेनिंग पे, उनके एक्सपीरियंस को इनकलकेट, और उनका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का भी कोई कंट्रीब्यूशन होगा. तो इस तरह का जो एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर है उसी को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, विच ये एक्सपेंडिचर से हम अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं. नाउ सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एजुकेशन है वन ऑफ द सोर्स, हेल्थ है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, लेट मी जस्ट इरेज इट, हाँ हेल्थ है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग में बी डन. सो एंड ऑल माइग्रेशन इज देयर, इंफॉर्मेशन इज देयर. ओके, तो सबसे पहले आते हैं एजुकेशन पे. जो भी आप एक्सपेंडिचर करेंगे एजुकेशन पे, वो ह्यूमन कैपिटल के लिए इन्वेस्टमेंट है. एजुकेशन से ह्यूमन रिसोर्स अर्निंग के लिए केपेबल होते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए केपेबल होते हैं. हेल्थ इज अबाउट एक हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बेटर वे में इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा. देयरफॉर एक्सपेंडिचर करना हेल्थ में इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. Then comes on the job training. तो ट्रेनिंग while in employment can be
इनसाइड द प्रोडक्शन यूनिट, जहाँ पे एक आप एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आपको ट्रेन भी किया जा रहा है स्पेशलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, ताकि आपका प्रोडक्टिविटी, आपका नॉलेज, आपका स्किल बढ़ सके। दैट मीन्स वे ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रेनिंग, हम उसको कैसे कर सकते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स पे बाय द पीपल को एम्प्लॉय कर, तो दोनों ही इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन कैपिटल में। इससे आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा और वर्कर्स का इनकम भी, हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। माइग्रेशन का मतलब यू ऑल नो, माइग्रेशन का मीन्स एम्प्लॉयमेंट सीकर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। मोस्टली देखो तो रूरल से अर्बन एरिया जाते हैं अपने सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो ये मूवमेंट आप क्यों कर रहे हो? यू आर ट्राइंग टू गेट सम मोर बेटर अपॉर्चुनिटीज। पीपल आजकल अगर उनको एक अच्छा वेल सेटल्ड जॉब भी मिल जाता है तो वो स्विच करते हैं, दूसरे प्लेस पे जाते हैं, दूसरे ब्रांच में ज्वाइन करते हैं। क्यों ये करते हैं? अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती है उनको। तो जो भी ये माइग्रेशन पे जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो सब क्या है? ये भी एक ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है। ये जो एक्सपेंडिचर है ये आप ट्रांसपोर्टेशन पे कर रहे हैं, एडिशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग लगा रहे हैं, तो सब कुछ है उन दैट केस। नाउ इन्फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर जो इन्फॉर्मेशन पे करते हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट सीकर्स हैं उनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ताकि वो एक बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का चॉइस कर सके। सो ये सच एन एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। Internet and other forms of information technology have increased the scope of obtaining information. जो भी other IT technology के जो भी sources हैं उससे क्या होगा कि more information will be obtained. So this is also one of the expenditure जो कि हम human capital formation में करते हैं. So this is all about the human capital and human development. Whole thing is done. I think it's a so if you like the video, then please like, share and subscribe. Thank you.